Hello students, welcome to online study by Ashadeep Group of School. Today we will study English for Standard 11 and we will discuss the first chapter, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So let us start the first session. Session number 1. The topics we will cover in today's session are first of all subject introduction, then after it will be author's introduction, and finally summary of the lesson. Friends, you have two books in your standard 11. First one is Hornbill. It is your main textbook. The other book you will have is Snapshots. Snapshots is your supplementary reading book. Both the books are compulsory, mandatory. Today we will start with Hornbill. The first chapter of Hornbill, it is the portrait of the lady. It's time for author introduction. So let us get information about the author. Khushwant Singh. Here you can see his picture. Khushwant Singh is the author of this lesson, which is the portrait of a lady. So let us get information about Khushwant Singh first of all. Khushwant Singh, one of the best Indian writers of all times. He was born in 1915 in Hadali. Hadali is located in Pakistan recently. That's his birthplace. He was educated at the government college Lahore. Lahore के government college में पढ़ाई की and at King's College Cambridge University. Cambridge University abroad भी वो पढ़े हुए हैं and the Inner Temple in London. These are the places where he got his education. He practiced law at the Lahore High Court for several years before joining the Indian Ministry of External Affairs in 1947. Indian Ministry of External Affairs 1947 में ज्वाइन करने से पहले वो लाहौर के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, लॉ प्रैक्टिस करते थे. He began a distinguished career as a journalist with All India Radio in 1951. As a journalist उसने कैरियर स्टार्ट किया 1951 में ऑल इंडिया रेडियो से. Since then, he has contributed a lot in the fields of journalism. He is one of the finest historians and novelists. एक अच्छे historian रहे हैं, एक अच्छे novelist भी रहे हैं और a forthright political commentator and an outstanding observer and social critic भी वो है. In July 2000, he was confirmed the Honest Man of the Year award by the Sulabh International Social Service Organization for his courage and honesty in his brilliant incisive writing. उसे बेस्ट मीन्स ऑनेस्ट पर्सन का अवार्ड भी दिया गया था. He was a member of the Rajya Sabha from 1980 to 1986, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं इंडियन पार्लियामेंट के का, उसमें भी वो मेंबर राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं. Among other honors, he was awarded the Padma Bhushan in 1974 by the President of India. But he returned the decoration in 1984 in protest against the Union government seize of the Golden Temple in Amritsar. इंडियन प्रेसिडेंट ने 1974 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया था. अवार्ड्स उसने वापस कर दिया क्योंकि जो पंजाब का अमृतसर है उसका गोल्ड टेम्पल गवर्नमेंट ने सीज कर लिया था, तो उसके अगेंस्ट में खुशवंत सिंह ने अपना अवार्ड वापस कर दिया था. सो दैट्स इट अबाउट द ऑथर. फ्रेंड्स, ऑथर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके नाम को लेकर.
एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब आप आंसर लिखते हो तब अगर ऑथर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो तो एक अलग आपका एक डिफरेंट ही इंप्रेशन जाता है रीडर के सामने। नाउ इट्स टाइम फॉर समरी। यहाँ पे बच्चों हम इस स्टोरी की बात करेंगे। यहाँ खुशवंत सिंह अपने ग्रैंड मदर को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं कि हाउ शी वॉज। देखिए पोर्ट्रेट की बात है, उसका पूरा एक पिक्चर, उसका नेचर, फिजिकल एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हमारे सामने खुशवंत सिंह लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं खुशवंत सिंह और उसके ग्रैंड मदर के रिलेशन को, उसकी लाइफ के बारे में जानते हैं। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड फ्रॉम द टाइम ही न्यू हर। उसकी ग्रैंड माँ जब से खुशवंत सिंह उसे जानने लगे हैं तब से वो ओल्ड ही है। शी हैड बिन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो थोड़ी आगे से झुक गई थी अपनी एज के कारण, शॉर्ट थी, फैट थी। शी वॉर वाइट क्लोथ्स एंड वॉकड विथ हर हैंड एट हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। वाइट कपड़े पहनती थी और अपना जो स्टूप होता है, जहाँ से बॉडी बैंड हो जाती है, आगे की ओर झुक जाती है, उसको बैलेंस रखने के लिए अपना एक हाथ वो अपने वेस्ट पर, अपने स्टूप पर रखा करती थी। मीन्स वो काफ़ी ओल्ड थी, काफ़ी ही वो ऐसे एग्जॉस्टेड थी। द नैरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वेर फ्रेंड्स। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। खुशवंत सिंह जो कि नैरेटर है और उसकी ग्रैंड मदर। शी वॉज नॉट प्रेटी बट ब्यूटिफुल एंड काम लाइक द एक्सपेंस ऑफ स्नो। वो प्रीटी नहीं थी, देखने में इतनी खूबसूरत नहीं थी, पर ब्यूटीफुल थी। मानी ब्यूटीफुल का मतलब है उसका दिल बहुत अच्छा था, जैसे कि एक्सपांस ऑफ स्नो, काम लाइक द एक्सपांस ऑफ स्नो। इतनी स्टिल थी, इतनी पीसफुल थी, हाईली कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड थी। ऐसा स्टिल सा उसका नेचर, पीसफुल सा उसका नेचर था। His parents left him with her at the village home and the grandmother took up the work of seeing that the narrator went to the school which was attached to the गुरुद्वारा। देखिए उसके मम्मी पापा खुशवंत सिंह के वो सिटी के लिए चले जाते हैं और यहाँ खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के साथ गांव में रहते। बच्चों ये पहला फेज़ है, गांव में किस तरह से खुशवंत सिंह और वो उसके ग्रैनी के साथ, दादी माँ के साथ रहते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कि गांव में उसकी लाइफ कैसी हुआ करती थी। जब पेरेंट्स चले जाते हैं उसे सिटी में, तो यहाँ किस तरह से रहते हैं। शी अकम्पनीड हिम एंड सेड टू रीड द स्क्रिप्चर। दादी माँ नैरेटर को, खुशवंत सिंह को कंपनी देते थे, उसके पास बैठते थे, स्क्रिप्चर पढ़ाई करते। स्क्रिप्चर मानी जो हमारे हॉली बुक्स होते हैं, रिलीजियस बुक्स होते हैं, वो पढ़ते थे। Then both of them walked home feeding the leftover chapatis to the village dogs। और जब वो स्कूल से वापस जाते थे, देखिए दादी माँ भी खुशवंत सिंह के साथ स्कूल जाती थी, पर वो स्कूल पढ़ती नहीं थी। उसके पास जो टेम्पल था वहाँ पे दादी माँ स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस बुक पढ़ती थी और ऑथर पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के बाद दोनों फिर वापस घर जाते थे ना, तो वो जो डॉग्स होते हैं, विलेज डॉग्स, उसको चपाटीज डालते जाते थे। मीन्स ग्रेनी साथ में ही चपाटीज ले लेती थी। इन द सिटी ग्रैंड मदर शेयर्ड अ रूम इनिशियली विद द नैरेटर, बट शी कुड स्पेंड लेस टाइम विथ हर ग्रैंडसन एज ही वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल बाय अ मोटर बस। बच्चों यहाँ चेंज आ जाता है। देखिए गांव में किस तरह से दादी रहती थी, नैरेटर को कंपनी देती थी, उसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेती थी, सब कुछ देखभाल करती थी। अब वो सिटी में आ जाते हैं, पेरेंट्स उसे बुला लेते हैं। तो ग्रैनी, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह दोनों अब सिटी में रहने के लिए आ जाते हैं खुशवंत सिंह के पेरेंट्स के साथ। दोनों बिल्कुल एक ही रूम शेयर करते हैं, इनिशियली लिखा है, देखिए शुरू में। पर अब ऐसा यहाँ पे माहौल है सिटी का, सिटी लाइफ ऐसी है कि ग्रैनी है वो ज़्यादा टाइम ग्रैंडसन के साथ स्पेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि अब नैरेटर है ना, वो स्कूल जाते हैं पर वो मोटर बस में जाते हैं, इसीलिए ग्रैंड मदर उसके साथ नहीं जा पाती है।
Also, there were no dogs to feed, so she started feeding the sparrows. ना तो यहाँ पे विलेज डॉग्स थे इस उस तरह के स्ट्रीट्स में, तो अब उसको चपाटी खिलाना तो पॉसिबल नहीं था, तो उसने स्पैरोज़ को खिलाना शुरू कर दिया. She also spent a lot of time at the spinning wheel and continuously kept saying prayer on her rosary. वो क्या किस तरह से अपने टाइम पास करती थी सिटी में? तो स्पिनिंग व्हील, जो व्हील ऐसे स्पिनिंग करके जिसमें से थ्रेड बनाया जाता है कॉटन में से, और पूरे दिन प्रेयर कहती रहती थी ऑन हर रोजरी. रोजरी होती है जिसे हम माला कहते हैं, तो वो बीड्स ऑफ द रोजरी वो काउंटिंग करती रहती थी और प्रे करती रहती थी. तो यहाँ पे ग्रैनी का लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाता है. लाइफ का कंट्रीब्यूशन नैरेटर की लाइफ में कम हो जाता है डे बाय डे. She didn't like what was being taught at the English school. She was very disturbed when she knew that they didn't teach about God and the scripture. यहाँ सिटी में इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाई करवाते थे, ग्रैंड मदर को अच्छा नहीं लगता था. जब उसे पता चला कि यहाँ पे गॉड के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है. Further, she was highly disturbed when she learnt he was given music lessons, as music for her had lewd associations with prostitutes and beggars. जब ग्रैंडमदर को पता चला कि स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाता है, तो वो काफ़ी दुखी हो जाती है. उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ग्रैंडमदर ऐसा बिलीव करती है कि म्यूज़िक है ना, वो प्रोस्टिट्यूट या बेगर उनके लिए सूटेबल है. जेंटलमैन लोगों के लिए म्यूज़िक सीखना वो अच्छी बात नहीं है, ऐसा दादी मानती है. इसलिए स्कूल पे जो म्यूज़िक पढ़ाया जाता है उसको लेकर दादी ग्रैंडमदर काफ़ी डिस्टर्ब है. She felt lonely when the narrator went to the university and then abroad for 5 years, but she accepted her loneliness and turned more towards prayers and her spinning wheel. यहाँ एक तीसरा फेज स्टार्ट होता है बच्चों. पहला गांव में, दूसरा यहाँ पे सिटी में आके जब नैरेटर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं. अब उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं. अब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो एकदम से एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑथर को एक सेपरेट रूम दिया जाता है रहने के लिए. उसके बाद वो अब्रोड पढ़ाई करने के लिए जाते हैं नैरेटर. तो नैरेटर के जाने के बाद ग्रैंड मदर अपनी लोनलाइनेस को, अपने आइसोलेशन को एक्सेप्ट कर लेती है. जैसी लाइफ है वैसा ही जीना शुरू कर देती है, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वो प्रेयर पर, स्पिनिंग व्हील में, उसमें ही देती रहती है. The narrator's grandmother took to feeding sparrows in the veranda of their city home. She would sit in the veranda breaking breads into little bits for the sparrows. Grandmother veranda में sparrows को bits of चपाटीज, क्रम्स ऐसे फीडिंग खिलाया करती थी, और वो वेरेंडा में बैठती रहती थी, ब्रेड को ऐसे उसके टुकड़े करके स्पैरोज को खिलाया करती थी. Hundreds of sparrows collected around her, creating a lot of noise with their chirping. बहुत सारी चिड़िया उसके आसपास कलेक्ट हो जाती थी, गैदर हो जाती थी, और एक तरह से देखो तो पूरा उसका नॉइज से पूरा एटमॉस्फेयर भर देती थी. उसके चिरपिंग से एक बेडलाम सा क्रिएट करती थी ये चिड़िया. सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, सम ऑन हर शोल्डर्स, एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड. कई चिड़िया उसके पैर पर बैठ जाती थी, तो कई उसके शोल्डर्स पर बैठ जाती थी, तो वो कई चिड़िया ऐसी थी जो उसके हेड पर बैठ जाती थी. मीन्स इतना ज़्यादा ये स्पैरोज के बीच में ग्रैंड मदर अपना टाइम स्पेंड करती थी. शी स्माइल एंड डिड सम मॉक स्कॉल्डिंग, बट शी नेवर शूड देम away. The happiest half hour of the day for her was the one spent with the sparrows.
वो चिड़िया उसके बीच में बैठती थी, हंसती थी, मॉक स्कॉल्डिंग का मतलब ऐसे प्यार से धमकाना कि चलो अब जाओ भाई यहाँ से, पर कभी उसको ऐसे स्कॉल्डिंग नहीं किया करती थी, स्पैरोज को ऐसे भगाया नहीं करती थी। और यही उसका सबसे अच्छा हैप्पीएस्ट हाफ और दिन का हुआ करता था, जो स्पैरोस के साथ वो बिताया करती थी, वो दिन का सबसे अच्छा वक्त ग्रैंड मदर के लिए हुआ करता था। The writer and his grandmother were very close in his childhood, and even when they came to stay with his parents, they shared a room. Slowly, the bond between them started decreasing as he was given his own room. दोनों में एक अच्छा रिलेशन था, क्लोज रिलेशन था चाइल्डहुड से ही, पर धीरे धीरे ये बॉन्डेज जो है ग्रैंड मदर का और नैरेटर का वो कम हो जाता है, क्योंकि उसको एक सेपरेट रूम दिया जाता है। देन ही डिसाइडेड टू गो अब्रोड फॉर फर्दर स्टडी। ऑथर है, नैरेटर है, वो अब्रोड जाते हैं पढ़ाई के लिए। हिज ग्रैंड मदर केम टू लीव हिम एट द रेलवे स्टेशन। उसकी ग्रैनी उसको छोड़ने के लिए आती है रेलवे स्टेशन। शी डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन। ना तो वो नैरेटर से बात करती है, ना तो कुछ इमोशंस उसके चेहरे पर दिखते हैं। शी किस्ड हिज फॉरहेड, और उसको चूमती है दादी ग्रैंड मदर नैरेटर को। The narrator didn't wipe the moist imprint, as he thought this was the last time he might be seeing her at her age. One couldn't tell what would happen to her in the 5 years he was away. Narrator, एक moist imprint मानी एक अंदर से ऐसा moist सा, slightly wet सा ऐसी इमोशन क्रिएट होती है, और ऐसा एक इम्प्रेशन होता है कि शायद वो अपने दादी को लास्ट टाइम मिल रहा है, ये फिज़िकल कांटेक्ट है, वो लास्ट टाइम है। अब शायद वो अपनी ग्रैंड मदर को नहीं मिलेंगे जब वो अब्रोड पढ़ाई करके वापस आएंगे तो। पर क्योंकि इस एज पर जितनी ओल्ड दादी है ना, उस एज पर कोई कह नहीं सकता है कि भाई वो अब कितना टाइम जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसा कौन? नैरेटर फील करते हैं। अब जब नैरेटर अब्रोड से वापस आ जाते हैं तो एक बड़ा सा चेंज आता है। अ सडन चेंज केम अ डे बिफोर शी डाइड। अ सडन चेंज केम ओवर द नैरेटर्स ग्रैंड मदर। एक बदलाव आ जाता है उसके बिहेवियर में। इन द इवनिंग शी डिडंट प्रे बट कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड। शाम को वो क्या करती है, जो मोहल्ले की नेबरहुड की जो लेडीज़ होती हैं उन सबको कलेक्ट करती हैं। शी गोट एन ओल्ड ड्रम एंड थम्प्ड इट एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स। एक पुराना देखिए यहाँ पे ड्रम है, और वो लेके बजाने लगती है, और क्या गाती है? होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वॉरियर्स का मतलब होता है जो विक्टोरियस पर्सन होते हैं, जो नाइट्स होते हैं, जो फाइटर्स होते हैं। मीन्स यहाँ नैरेटर जो पढ़ाई करके वापस आए हैं अपने गांव, अपने घर पे, तो उसको एक विक्टोरियस पर्सन के तौर पे उसको वेलकम करने के लिए, देखिए होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, उसके लिए गाने गाती है ग्रैनी, सब मोहल्ले की वुमेन को गैदर करके। शी हैड टू बी परसुडेड टू स्टॉप ओवर स्ट्रेनिंग हर सेल्फ। और वो इतना हाइपर हो जाती है, इतना एक्साइटेड हो जाती है, इतना ओवर स्ट्रेन हो जाती है कि घर के लोग समझाते हैं कि भाई अरे इतना ज़्यादा तुम मत बजाओ। इतना ड्रम बजाने लगती है, इतना बजाने लगती है कि ऐसा लगता है कि अब ये ओवर स्ट्रेन हो गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द नैरेटर हैड नोन हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे एट ऑल। पहली बार नैरेटर ने देखा कि आज वो प्रे नहीं कर रही थी, क्योंकि रेगुलरली एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि वो प्रे नहीं करती हो, प्रे छोड़ देती हो। आज एक ऐसा पहली बार देखा है नरेटर ने कि आज उसने प्रे नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग द डॉक्टर वॉज कॉल्ड एज शी हैड अ माइल्ड फीवर। दूसरे दिन डॉक्टर को बुलाया गया, उसको फीवर आ गया है ग्रैनी को। ग्रैंड मदर टोल्ड देम दैट हर एंड वॉज नियर एंड शी डिडंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम but pray as she had just a few hours before the close of the last chapter of her life. डॉक्टर ने कहा कि भाई ये माइल्ड फीवर है, फीवर चला जाएगा, पर ग्रैनी ने कहा नहीं, अब मेरा एंड नियर, मानी मेरी लाइफ अब पूरी होने जा रही है,
मैं मरने वाली हूँ। और वो लास्ट मोमेंट पे वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी कोई और एक्टिविटी करके, किसी से बातें करके। वो बस सिंपली गॉड के साथ अपने आप को कनेक्ट कर देना चाहती थी। She lay in bed peacefully, praying on her rosary, and before anyone could suspect, her lips had stopped moving and she had passed away peacefully. वो अपने बेड में ऐसे ही पड़ी रहती है, प्रेइंग ऑन हर रोजरी, और अपना जो बीड्स ऑफ रोजरी काउंटिंग करती है। और उससे पहले कि हम कुछ सोचे या कुछ सस्पेक्ट करें, उसके लिप्स हिलना बंद हो गए और वो इस तरह से मर जाती है। सी डाइड, पास्ड अवे पीसफुली। When the narrator's grandmother died, the sparrows came in large number and sat near her body. जब ग्रैंडमदर मर जाते हैं, डेथ हो जाता है, तो बहुत वो जो स्पैरोज जिसको वो खिलाया करती थी वो सब आ जाती है। दे डिडंट चीर अप बट सेट देयर साइलेंटली। स्पैरोज जो रेगुलरली यूजुअली काफ़ी चिरपिंग किया करती थी, आज कुछ भी आवाज़ नहीं कर रही है। सारी स्पैरोज एकदम से साइलेंट हो गई है। When the narrator's mother brought some bread and broke it into little crumbs, they didn't touch the crumbs. और नैरेटर की मम्मी जब इन स्पैरोज के लिए ब्रेड के क्रम्स लाती है, बिट्स लाती है उसको खिलाने के लिए, तो स्पैरोज उसको नोटिस नहीं करती है, खाती भी नहीं है। Didn't touch the crumbs. When grandmother's body was taken for cremation, they flew away quietly. ग्रैंडमदर का बॉडी जब क्रेमेशन के लिए ले जाया जाता है तो स्पैरोज क्वाइटली फ्लू अवे, उड़ जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द क्रम्स वर स्वेप्ट अवे। और दूसरे दिन सुबह को जो क्रम्स, जो ब्रेड के टुकड़े स्पैरोज के लिए डाले थे वरंडा पर, वो स्वेप्ट अवे, उसे स्वीप कर दिया जाता है। एंड दिस वे grandma's life gets an end and the memories for the narrator. ऐसा एक पोर्ट्रेट अपने ग्रैंड मदर का नैरेटर हमारे सामने रखते हैं। दैट्स इट फ्रेंड्स फॉर टुडे। थैंक यू।